मेरी आवाज आ रही है? Yes, Yes, sir. sir. Okay, okay. So, dear students, prior to this lecture, we have already completed our 3 units, and even we have started and completed most of the part, that is about 40% part of our unit number 4. As far as our unit number 4 considered, it is related to biosystematics, that is biological systematics. As far as systematics considered, it is supposed to be a new concept, and during the earlier time, the importance was given to only morphological character, and in the latter period, about after 1950s, the more importance is given to other characteristic features also. That is from anatomy, embryology, and other features. So the topic remaining was related to phenotypic plasticity from fourth unit, last part. As far as phenotypic plasticity is considered, phenotypic plasticity refers to some of the changes in organism, their behavior, morphology, physiology in responses to unique environment. So prior to this, we have studied the part which is related to biosystematics, and now we are going to study regarding the phenotypic plasticity. As far as plasticity is considered, the single term plasticity itself gives idea regarding the plastic. For example, plastic is transparent, it may be colorful, it may be of any structural and morphological changes, and normally it is flexible. We often use the term, आप लोग मुझे सुन रहे हैं? Yes, sir. We Yes, sir. often use the term plasticity and elasticity. As far as plasticity is considered, that is the various characteristic features of a plastic. We use the plastic for various purposes. Very similarly, we are observing the different individuals to be showing different morphological features in the different climatic conditions. And so they are called as a phenotypic plasticity. Their characteristic feature is related to phenotypic plasticity. Phenotypic plasticity refers to some of the changes in behavior of organism. We may observe that the organism shows different morphological features whenever there are changes in climatic conditions or changes in environmental conditions. And morphology and physiology in response to unique environment, that is responses of organism to unique environment. For example, we may consider that during the summer period we use cotton cloths and normally non-colored or white colored cloths. Is it clear? Yes, sir. During winter season we often use dark colored cloths and cloths which are comparatively warm and made up of wool. So this is again nothing but our plasticity in response to environment. But I think you might have observed that if in your house or family there are 8-10 persons, out of these 8-10 persons, 1 or 2 persons are feeling it is very cold, or they require to close the fan, and rest of people says that there is a no cold, fan should be continued. That means different responses observed for same climatic conditions to different individuals from the same family. Have you observed this phenomenon? हेलो, क्या आप लोग सुन रहे हैं? क्या आपने ये फिनोमेनन नोटिस किया है? Yes, sir. Yes, sir. Okay, so very related to such an example, we are going to study today the topic that is related to phenotypic plasticity. Fundamentals to the way in which organism cope with environmental variations. It is equal to coping up of organism to different climatic conditions or different environmental conditions. So no need to explain much more
regarding this, because you are better known. Whenever climate or environment is changing, we also try to change. Phenotypic plasticity encompasses all type of environmentally induced changes. जो भी environmentally induced change है, ऐसे सभी environmentally induced change के बारे में phenotypic plasticity plays important role. And these changes due to morphological, physiological, behavioral, or phenological. First one, that is morphological change. I think you might be known there are different morphological features observed in case of a different individual, and they have to show different adaptations. For example, हम लोग देखते हैं अपने यहाँ नॉर्मल हाइट 5.6 फीट की है, नॉर्मल बोल रहा हूँ मैं, ज्यादा से ज्यादा, चलो 5.8 फीट की है, और ऑन एन एवरेज अगर देखी गई तो इंडियंस में इट इज अबाउट 5 फीट। आप अगर किसी केव्स में जाना चाहते हैं तो द इंडिविजुअल with height, less height, has to take less pains, while the individual with more in height has to take more pains to enter inside that cave. Do you get it? What I am saying? Yes, sir. किसी केव में अगर जाना है जो समझ लो 3.5-4 फीट की हाइट रखती है, ऐसे केव में जिनकी हाइट कम है उनको कम तकलीफ होगी, लेकिन अगर 3.5 फीट वाली केव है और उसके अंदर घुसना है तो जिसकी हाइट 6 फीट एंड अबाव है, 5 फीट 10 इंच एंड अबाव है, उसको बहुत ज्यादा तकलीफ होगी। सो such a type of changes may be due to morphological characteristic feature, or sometime physiological characteristic feature, or sometime behavioral characteristic feature. अभी मैं physiological characteristic features के बारे में बताता हूँ। नॉर्मली आपने देखा होगा आपके घर में हर एक की टेस्ट अलग अलग होती है, हर एक की रिक्वायरमेंट या कंडीशंस अलग अलग होते हैं। कोई बोलता है चाय मीठा चाहिए, कोई बोलता नहीं चाय कम शक्कर वाला चाहिए, कोई बोलता है कि नहीं मुझे बिल्कुल शक्कर चाहिए ही नहीं, कोई बोलता है मुझे ब्लैक टी चाहिए। What these are actually, these are the physiological requirements of that person. आ रहा है आपके ध्यान में? मतलब किसी को तकलीफ होती है, that's why he is going to modify. कोई बोलता है मैं चाय नहीं लेता, मैं कॉफी लेता, कोई बोलता नहीं मैं होम्योपैथिक दवाई लेता हूँ, मुझे कॉफी चलती नहीं, कोई बोलता मैं दोनों भी नहीं लेता, कोई बोलता मैं सिर्फ दूध ले लेता, कोई पर्सन आपको मिलेगा मैं सिर्फ वेगन डाइट हूँ, मुझे दूध भी नहीं चलता। Is it right? Yes, sir. So it is due to either physiological conditions or any of the characteristic feature which is acquired by the individual. Then behavioral changes. मैं एक आपको एग्जांपल बताता हूँ so that you get idea regarding the behavioral changes. आप लोगों ने डोंकी देखा है? हेलो, डोंकी देखा है आपने? गधा देखा है? हाँ सर देखा है। कहाँ दिखाई, कहाँ दिखने मिलता है? सर गांव में। गांव में मतलब गांव के बाहर। गांव के बाहर, गांव के बाहर खेत में मिलता है, खेत में मिलता है, घरों में मिलता है, नहीं तो कोई ऐसा एरिया बता दो एक्वेटिक प्लेसेस में मिलता है, जहाँ वेस्टलैंड है ऐसे जगह पे मिलता है, नहीं तो आप वेस्ट प्रोडक्ट फेंकते हैं ऐसे जगह पे मिलता है, ऑफन दिखाई देता है। एनीबॉडी? हेलो, मैं स्पेसिफिक कैरेक्टर पूछ रहा हूँ आपको। हेलो, नॉर्मल हैबिटेट गधों की कहाँ होती है? दीपाली, दीपाली आवाज सुन रहे हैं? हाँ एक सर। हाँ, नॉर्मली गधे मिलते हैं। दीपाली बताओ। दीपाली सुन नहीं रही है। मेघा? ग्रासलैंड। हाँ, गधे कहाँ देखने मिलते हैं ज्यादा? ग्रासलैंड। ग्रासलैंड पर, नहीं तो जो वेस्टलैंड है ऐसी वेस्टलैंड पर। चलो, अगर मैंने ऐसा बता दिया कि मैंने किसी गधे को बकिंगहैम पैलेस में छोड़ दिया, कहाँ जाएगा वो? क्या आप जानते हैं बकिंगहैम पैलेस क्या है? मेघा, मेघा बात कर रही है?
Yes, sir. बकिंगहैम पैलेस कहाँ है? Sir, don't know. बकिंगहैम पैलेस इज ऑफिशियल रेसिडेंस ऑफ क्वीन एलिजाबेथ। अगर उसके पैलेस में मैंने एक गधे को छोड़ दिया, वो कहाँ जाएगा? क्या ड्राइंग रूम में जाएगा, हॉल में जाएगा, किचन में जाएगा, क्या बेडरूम में जाएगा, या वेस्ट प्रोडक्ट जहां फेंकते बकिंगहैम पैलेस के वहां जाएगा? वेस्ट प्रोडक्ट जहाँ पे फेंकते वहाँ पे जाएगा। यस, एग्जैक्टली। दैट मीन्स दिस इज द बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ डोंकी। मैंने जानबूझ को आपके एग्जांपल बताया। मतलब क्लाइमेटिक कंडीशन कैसे भी चेंज हुए तो हम बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर नहीं छोड़ते। इज इट राइट? Right, sir. Okay. Yes. Then next one is phenological characteristic feature. अब phenology, what is phenology? Anybody of you can tell me what is phenology? क्या आपने phenology ये वर्ड सुना है? हेलो, No, sir. चलो हम देख लेते हैं what is phenology. Phenology is nature's calendar. क्या ये दिया है? हेलो, phenology is nature's calendar. That is, phenology is sometimes confused with phonology. Phonology से confuse करते, वैसे नहीं है। Phenology is nature's calendar. मैं फिर भी दिखाता हूँ। क्या आप लोग देख रहे हैं? हेलो, Yes, sir. हाँ, phenology की definition. Phenology is defined as study of timing and recurring biological events causing to their timing regard to their biotic and abiotic forces and the interrelation among phases of same or different species. चलो अभी हम सिंपली मैं आपको बताता हूँ व्हाट इज फेनोलॉजी। सपोज आपने कैलेंडर ऑफ फ्लावरिंग ऑफ डिफरेंट जनरा, आपके एरिया में 10 अलग अलग जनरा है, इन जनरा का एक कैलेंडर बनाया। फॉर एग्जांपल आपके यहाँ जो भी प्लांट्स है उन प्लांट्स को फ्लावरिंग कब आता। फॉर एग्जांपल आपने कॉलम बनाए जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, दिसंबर तक, और लेफ्ट हैंड साइड को पहले रो में आपने डाला फॉर एग्जांपल 10 प्लांट के नाम डाले, और जिस जिस मंथ में जिस जिसको फ्लावरिंग है उसको आपने मेंशन किया। यस, एक्स प्लांट को जनवरी में फ्लावरिंग है, फरवरी में फ्लावरिंग है, मार्च में फ्लावरिंग है। ऐसा जो कैलेंडर बनेगा दैट कैलेंडर इज नथिंग बट फेनोलॉजिकल कैलेंडर। आ रहा है ध्यान में? दैट इज phenological features of plant, that means features of plants which are related to flowering and fruiting. Is it clear to you? Yes, sir. So it is a phenological. So remember, due to environment, morphological, physiological, behavioral and phenological characteristic features may change if individual is having plasticity. अगर प्लास्टिसिटी नहीं है तो नहीं होता। शायद आपने कई लोगों को देखा होगा, कैरेक्टर कई लोगों के देखे होंगे। मैंने एक ऐसा इंसान देखा था कि ही हैज एलर्जी टू स्टे इन अ ट्यूबलाइट। ट्यूबलाइट मतलब फ्लोरोसेंट लाइट। अगर फ्लोरोसेंट लाइट में वो इंसान आता है तो इमीडिएटली हम इसको क्या बोलते हैं, बॉइल्स आते हैं स्किन पर। नहीं तो मैं दूसरा कैरेक्टरिस्टिक फीचर बताता हूँ। आप बोलते हैं कि मैं पनीर नहीं खाता, क्यों? पनीर खाने के बाद मेरा पेट खराब हो जाता है। आप बोलते हैं कि मैं ज्यादा ऑयली स्पाइसी नहीं खाता क्योंकि आई कुड नॉट डाइजेस्ट, आई हैव डिफिकल्टी इन डाइजेशन। इज इट राइट? ऐसे कैरेक्टर्स आपने देखे होंगे। लेकिन कई इंडिविजुअल्स आपने देखे होंगे कि जो व्हाटएवर अवेलेबल कंडीशंस है उस कंडीशन में रहते हैं और उनको कहीं तकलीफ नहीं होती। इज इट राइट? इज इट राइट? Right, sir. पहले केस में जो इंडिविजुअल मैं बोलूंगा कि जिसको स्पेसिफिक कंडीशन लगते हैं, ही हैज नो प्लास्टिसिटी। दूसरे कंडीशन में जो हालात है उस हालात में जो इंडिविजुअल रह सकता है, ही इज गोइंग टू एडजस्ट हिमसेल्फ, ही इज सपोज टू हैज प्लास्टिसिटी। ओके, सो fundamental to the way in which organism cope with environmental variation that is phenotypic plasticity encompasses all types of environmentally induced changes.
और इन्वायरमेंटली इंड्यूस्ड चेंजेस मतलब कौन से? मॉर्फोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल, बिहेवियरल एंड फेनोलॉजिकल चेंजेस that may or may not be permanent through an individual lifespan. Individual lifespan में कभी भी वो possible नहीं है. So this term, that is phenology, not phenology, the phenotypic plasticity term was originally used to describe developmental effects on morphological characteristic features. आप लोग सुन रहे हैं? Yes, sir. गायत्री नोटबुक लेके बैठी है? हेलो, नोटबुक लेकर बैठो और साथ साथ अपने पॉइंट्स बना दो. So phenotypic plasticity term was first originally used to describe the developmental effects on morphological characteristic features, but it is now more broadly used to describe all phenotypic responses to environmental changes. चलो मैं simple example बताता हूँ. Which variety is more famous in mango? Which variety of mango is very famous? Hello. Mango की हापुस या it is known as Alfonso variety. Okay. अगर मैंने जो हमेशा एग्जांपल बताता हूँ रत्नागिरी और देवगढ़, अल्फांसो इज मच फेमस. लेकिन अगर वहां से आपने प्लांटलेट लाया, यहाँ ग्रो किया नागपुर में, तो क्या सेम फ्लेवर, सेम ओडर, सेम फ्लेवर आपको मिलता है नागपुर में? नो सर. No. No, because it is not showing any type of plasticity. It is sensitive to environmental conditions. Is it clear to you? Hello? Yes, sir. So it has no any specific type of plasticity. It requires specific environmental conditions to grow. Chalo. So term was originally used to describe developmental effects on morphological characters, but is now more broadly used to describe all phenotypic responses to environmental changes such as acclimatization or acclimation as well as learning. So there are different types of changes observed. Special case when difference is environmental induce discrete phenotypes in termed polyphenism. So there is one characteristic feature of polyphenism. Poly means many. Phenism means it is related to individual, which shows different morphological changes in different climatic conditions or remain as it is during different climatic conditions. So phenotypic plasticity is ability of one genotype to produce more than one phenotype when exposed to different environmental conditions. आप दोनों चीजें थोड़ी ध्यान में ले लो. कोई इंसान अलग अलग एनवायरमेंटल कंडीशंस में रहने के बाद भी खुद में कोई चेंजेस होने नहीं देता. दैट इज द डिफरेंट एंड सच अ टाइप ऑफ कैरेक्टरिस्टिक फीचर इंपॉर्टेंट फॉर अस. लेकिन यहाँ फिनोटाइपिक प्लास्टिसिटी इज एबिलिटी ऑफ दैट जीनोटाइप और दैट इंडिविजुअल टू प्रोड्यूस मोर देन वन फिनोटाइप. मतलब उसका खुद का फिनोटाइपिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो है वो छोड़ के दूसरा अलग फिनोटाइपिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर वो एक्सेप्ट कर रहा है. मतलब मेरा प्रोफेशन पढ़ाई करने का है, समझ लो मैंने पढ़ाई करने का जॉब छोड़ दिया या मुझे जबरन छोड़ना पड़ा और मैं किसी वेल्डिंग शॉप पे जाके बैठा हूँ और मैं सफाईदार वेल्डिंग कर रहा हूँ. वेदर इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ प्लास्टिसिटी और नॉट. हेलो. Yes, sir. नहीं तो मैंने समझ लो कि ये जॉब छोड़ दिया और मैं कहीं गार्डन में जाके प्लांट्स डेवलप कर रहा हूँ, प्लांट्स बेच रहा हूँ और उसमें भी मैं अगर खुश हूँ तो इट इज मोर कैरेक्टरिस्टिक फीचर व्हिच शोज प्लास्टिसिटी. इज इट क्लियर टू यू? इज इट क्लियर टू यू मेगा? चलो. ईच लाइन हियर रिप्रेजेंट्स ए जीनोटाइप. दैट मीन्स जो भी अलग अलग लाइंस है, दीज लाइंस आर रिप्रेजेंटिंग जीनोटाइप. हॉरिजॉन्टल लाइंस मतलब मैं आपको एक ग्राफ दिखाने वाला हूं, उस ग्राफ के बारे में यहाँ मेंशन कर रहा हूं. हॉरिजॉन्टल लाइन शोज द फिनोटाइप इज द सेम इन डिफरेंट एनवायरनमेंट
and some changes observed in different other conditions. Generally, phenotypic plasticity is more important for immobile organisms. Immobile organism कौन है? Hello? Who are the immobile organisms? Plants. Plants. Yes, exactly. मैं बार बार बता रहा हूं कि हम अपने कंडीशंस को, सराउंडिंग को मॉडिफाई करते हैं, खुद को मॉडिफाई नहीं करते. अगर मैं रूम में बैठा हूं, गर्म हो रहा है तो मैं फैन लगा रहा हूं. उससे भी गर्मी नहीं कम हो रही, मैं कूलर लगाऊंगा. उससे भी नहीं कम हो रही, मैं एसी लगाने की सोच करूंगा. अगर मुझे लाइट कम लग रही तो मैं additional light लगाऊंगा. That means I am not modifying myself, but I am going to modify the environment because I am moving object or I am moving individual or organism. While phenotypic plasticity किसको ज्यादा जरूरी है? Because plants are fixed to one position and they did not have any ability to change the entire climate or at least micro surrounding. आ रहा है ध्यान में? So generally phenotypic plasticity is more important for the immobile organisms including plants than mobile organisms like most of organisms. आ रहा है ध्यान में? आप एक जगह रहते, वो छोड़ के दूसरी जगह जाते, आप बोलते वहां पानी के प्रॉब्लम्स है, वहां इलेक्ट्रिसिटी के प्रॉब्लम्स है. फॉर एग्जांपल आप बोलते सराउंडिंग सोसाइटी ठीक नहीं है, आप बोलते वहां मेडिकल शॉप्स नहीं है, एमिनिटीज नहीं है, नहीं तो फॉर एग्जांपल किराना शॉप्स नहीं है, हॉस्पिटल नजदीक नहीं है, पोस्ट ऑफिस नजदीक नहीं है, इसलिए आप एक एरिया छोड़ के दूसरे सुटेबल एरिया में जाते हैं बिकॉज यू आर मोबाइल ऑर्गेनिज्म. बट रिगार्डिंग प्लांट ऐसा नहीं है. क्या कभी आपने ऐसा सुना है कि प्लांट को यहाँ पानी मिल नहीं रहा है, यहाँ से भटकते भटकते प्लांट गोरेवाड़ा की तरफ भाग गया? सुना है? हेलो? No, sir. नहीं. दैट मीन्स इसका मतलब क्या है कि कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ प्लास्टिसिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लिविंग ऑर्गेनिजम्स बट नॉन मूविंग ऑर्गेनिजम्स और इमोबाइल ऑर्गेनिजम्स. So generally phenotypic plasticity is more important for immobile organisms including plants than the mobile organisms like most of organisms. As mobile organisms can often move away from unfavorable environmental conditions. मैंने एग्जांपल बताया. Nevertheless, mobile organisms also have at least some degree of plasticity in at least some aspect of phenotype. मैं आपको फिर से बताता हूं. क्या आप विदाउट फैन और विदाउट लाइट समर डेज में रह सकते? विदाउट लाइट रह सकते, लेकिन क्या आप विदाउट फैन या कूलर रह सकते समर में? No, sir. नहीं. समझ लो कि आपके घर का पावर कट ऑफ हो गया आधे घंटे के लिए, क्या आप बेयर कर सकते? क्या नहीं? मजबूरी है, बेयर तो करना पड़ेगा. जैसे ही है हाथ में आप हार्डबोर्ड लेंगे, नहीं तो पेपर लेंगे, नहीं तो और कोई चीज लेंगे और हवा लेने की कोशिश करेंगे, लेकिन यू आर ट्राइंग टू रिमेन स्टेबल एज इट इज ड्यूरिंग चेंजिंग एनवायरनमेंट एटलीस्ट इन सम केसेस. आ रहा है ध्यान में? हेलो? अगर 5-10 मिनट के लिए लाइट गई तो आप बेयर कर सकते, नो प्रॉब्लम. चलो मैं दूसरा एग्जांपल बताता हूँ. घर को आग लगी, क्या आप अंदर बैठ सकते हैं? अगर समझ लो घर को आग लगी, क्या आप अंदर बैठ सकते हैं? No, sir. इसका मतलब क्या है? प्लास्टिसिटी, इवन दो इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ इंडिविजुअल, इन at least in case of animals also they show plasticity at least for some character. चलो मैं आपको और एक क्वेश्चन पूछता हूं. सक्सेसफुल आदमी कौन होता है? सक्सेसफुल आदमी बनने के किसके चांसेस ज्यादा है? हेलो? इन टर्म्स ऑफ प्लास्टिसिटी सक्सेसफुल आदमी बनने के सबसे ज्यादा चांसेस किसके हैं? कैसे इंडिविजुअल के कैरेक्टरिस्टिक फीचर है? किस टाइप के इंडिविजुअल्स सस्टेनेबल रह सकता है? हेलो? हाँ बोलो. यस स्वप्निल बोलो. सर स्ट्रगलिंग एनिमल. स्ट्रगलिंग एनिमल नहीं, ये क्वेश्चन इन कॉन्टेक्स्ट
टू ह्यूमन बीइंग मैं बोल रहा हूँ कि सस्टेनेबल रहने के ज्यादा चांसेस किसके हैं? आप बोलते हैं एक्स वाई जेड इंडिविजुअल इज वर्सटाइल। वर्सटाइल मतलब जैसा एनवायरनमेंट है वैसा रहता है। तो इन टर्म्स टू दिस कंडीशन और इन रिलेशन टू दिस कंडीशन, I can just say that the individual who is flexible, individual who is elastic has more chances to get success. आ रहा है ध्यान में? मेरे क्वेश्चन का जवाब ये था कि the individual which has more elasticity, individual which has more flexibility is supposed to be more successful individual. You get it? हेलो, Yes, sir. चलो मैं बताता हूँ। अगर समझ लो कि मैंने हर रोज आप लोगों में से किसी एक दो लोगों को डांटना शुरू किया, क्या आप चुप बैठेंगे? नहीं सर। बैठेंगे, लेकिन कम हद तक। मतलब फॉर एग्जांपल एक बार बोला, दो बार बोला, तीन बार बोला, स्वप्निल को मैंने बार बार डांटा, स्वप्निल चुप बैठेगा। लेकिन स्वप्निल अगर एग्रेसिव है तो वो क्या बोलेगा? सर बार बार आप मुझे क्यों बोल रहे हैं? बात ध्यान में आ रही है? ऐसे हालात में स्वप्निल अगर फ्लेक्सिबल है, इलास्टिक है, तो स्वप्निल क्या सोचेगा? जाने दो, अपने सर है, अपने टीचर है, जो बोल रहे हैं वो सुन लेने का, अपना दिमाग खराब नहीं करना। तो सपोज टू बी ही इज मोर इलास्टिक, मोर फ्लेक्सिबल एंड ही हैज मोर चांसेस टू बिकम ए सक्सेसफुल इंडिविजुअल। आ रहा है ध्यान में? दैट मीन्स एग्जिस्टिंग एनवायरमेंटल कंडीशन में खुद को जो सबसे अच्छा स्टेबल रख सकता है, ऐसा इंडिविजुअल विल बी सक्सेसफुल। एंड my view is that why angiosperms are more successful? Angiosperms are more successful because they are more adjusting to available climatic conditions. You get it what I am to say? Hello? Yes, sir. One more condition, remember well, in case of a taxonomy, there are three important parameters. And these three important parameters are like, for example, classification, identification, and nomenclature. These three are important aspects of taxonomy. And for development in any of these aspects, we have to take aid of or help of any of the branch of science from which maximum information regarding the individual is available, and hence जयश्री नाइक, कुछ प्रॉब्लम है क्या जयश्री? जयश्री want to talk anything? I should continue? Yes, जयश्री sir. I should continue? Yes, sir. चलो, okay, continue. So mobile organisms can often move away from the unfavorable environment. Nevertheless, mobile organisms also have at least some degree of plasticity in at least some aspect of phenotype. मैंने अभी example बताया. One mobile organism with substantial phenotypic plasticity is Acranthosyphon. That is Acranthosyphon possum. Individual का name है Acranthosyphon possum. of the aphid family. Aphid family का ये individual है Acranthosyphon possum, which exhibit the ability to interchange between asexual and sexual reproduction. क्या आपको पता है कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कब होने के ज्यादा चांसेस है किसी इंडिविजुअल में? हेलो, किसी इंडिविजुअल में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होने के ज्यादा चांसेस कब रहते हैं? In terms of condition, if favorable conditions are available, organism try to complete his life cycle only by sexual way. Is it right? In case of at least lower organisms like algae, fungi, bryophyte, and even in case of some of the plants. Is it clear to you? मैं फिर से बताता हूं. लोअर प्लांट्स में हमने देखा है कि whenever environmental conditions are favorable, they are interested to complete their life cycle sexually.
But if there are non-favorable conditions, then they try to finish their life cycle either by asexual or by vegetative method. Is it clear to you? गायत्री, गायत्री, गायत्री माइक ऑन करो। गायत्री मेरी आवाज सुन रही? रश्मि दमाए आवाज सुन रही? यस सर। हाँ, तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि नॉर्मली ऑर्गेनिजम्स में सस्टेनेबिलिटी के अलग अलग फीचर्स रहते हैं। मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल फिर से बताता हूँ। आप मार्केट में सब्जी लाने के लिए कितने बजे जाते? हेलो, सपोज मार्केट शाम को 5 बजे खुलता है, रात को 9:30 बजे तक मार्केट है सब्जी का। आप कितने बजे मार्केट में सब्जी लाने के लिए जाते हैं रश्मि? सर 7 या 8 बजे। क्यों? अगर मार्केट तब तक रेट कम होते हैं। रेट कम होते हैं। क्या 7 से 8 बजे के बीच में रेट कम रहते हैं या 9 से 9:30 बजे के बीच में रेट बहुत कम रहते हैं? 9 से जितना लेट 9:30 का होगा बहुत कम उतना रहता। जितना लेट होगा उतना। चलो, फिर आप हमेशा लेट क्यों नहीं जाते? अगर सस्ते मिलते हैं तो क्या आप हमेशा लेट क्यों नहीं जाते? बिकॉज यू हैव टू लुक टू सस्टेनेबिलिटी फीचर ऑल्सो। क्योंकि आप जितने लेट जाओगे उतने अच्छे क्वालिटी का माल खत्म हो जाता है। इज इट क्लियर टू यू? यस सर। यस सर। और इसलिए जो शायद किसने बताया अभी, गायत्री नहीं, किसने, रश्मि ने बताया ना, 6 से 7 के या 7 से 7:30 के बीच में। क्योंकि दोनों के बीच का बैलेंस आपको रखना है। आपको क्वालिटी भी अच्छी चाहिए और पैसे भी कम देना है, और इसलिए आप 7 से 7:30 बीच के बजे के बीच में जाते हैं, ऐसे बताया। So one mobile organism with substantial phenotypic plasticity, and example is Acrathosyphon pisum, who is from aphid family, which exhibit the ability to interchange between asexual and sexual reproduction. चलो मैं सेम एग्जांपल बताता हूं। अगर समझ लो मार्केट 5:30 बजे खुल गया सब्जी का, और 6 बजे से बारिश की संभावना बढ़ गई। मैं क्या बोल रहा हूं, आपके ध्यान में आ रहा है? यस सर। तो ऐसे हालात में क्या रेट हाई रहते? नो सर। नो। दैट मीन्स शॉपकीपर क्या सोचने लगते हैं, वेजिटेबल वेंडर्स क्या सोचने लगते हैं, अभी बारिश है, फिर से इतनी पूरी सब्जी घर लेना पड़ेगा, उससे बेस्ट वे पैसे के पीछे चक्कर में ना लगने से 2 रुपए सस्ता, लेकिन जल्दी से इसको खत्म करके घर जाते। इज इट राइट? क्या ये दीपाली सही है क्या गलत है? सही है। तो क्या ये वेंडर की प्लास्टिसिटी नहीं है? क्या ये वेंडर की प्लास्टिसिटी नहीं है? वेंडर क्या सोचता है कि चलो मैंने बहुत दिन कमाया, आज बारिश आने के चांसेस है, अभी और कम थोड़ा सा रेट कर दिया तो जल्दी जल्दी खत्म हो जाएगा। सो इन एपिड फैमिली का हमने एग्जांपल देखा, एज वेल एज ग्रोइंग विंग्स बिटवीन जनरेशंस व्हेन प्लांट बिकम टू पॉपुलेटेड। एपिड फैमिली का एक एग्जांपल हमने देखा था। Biological organisms show amazing ability to change their forms and behavior according to their surroundings. Surroundings के हिसाब से ऑर्गेनिज्म खुद को चेंज करता है। क्या ये फैक्ट है या नहीं है? हेलो, क्या ये फैक्ट है क्या नहीं है? है सर। फैक्ट है। स्वप्निल, मेरी आवाज आ रही, सुन रहे मुझे? यस सर। 2-3 दिन पहले मैंने आपके ग्रुप पर डाला था, क्या आपका रिजल्ट लगा है? आई विल बी हैप्पी टू सी योर रिजल्ट। आप में से किसी ने भी शेयर नहीं किया। क्या मैंने आप में से किसी को बोला शेयर करो करके? हेलो स्वप्निल, बात कर लो। क्या मैंने किसी को पूछा कि रिजल्ट क्या लगा फिर बाद में? यस, स्वप्निल सुन रहा है? यस सर। हाँ, क्या मैंने किसी को फिर से बोला? पता नहीं सर। तुम्हें बोला रिजल्ट शेयर करो करके? फिर से मैंने मैसेज डाला? नहीं सर।
नहीं, क्यों नहीं डाला? आई हैव एडजस्टेड माई सेल्फ, वॉट एवर कंडीशन से मुझे सामने जाना पड़ रहा है, आई हैव एडजस्टेड, आई नेवर आस्क यू रिगार्डिंग योर रिजल्ट। ओके, चलो कंटिन्यू। Biological organisms show amazing abilities to change their forms and behaviors according to their surroundings. For example, some caterpillars mimic flowers or twigs of the tree depending on their diet. आपने बहुत सारे organisms, caterpillars, insects देखे होंगे, birds देखे होंगे कि जो अपने खुद के बॉडी को चेंज करते हैं according to surrounding. So depending on their diet, freshwater snails grow thickened and deformed shells on sensing predators, cues, and female aphids develop wings for migration if their habitat is crowded. So such a type of plasticity is observed among the moving organisms also. Flexibility is developing distinct external characteristic feature known as phenotypic plasticity. मैं फिर से बोल रहा हूँ, in developing flexibility in developing distinct external characteristic feature is known as phenotypic plasticity. मैं आज फिर से आपको बोल रहा हूं कि मैं आज की नोट शेयर करने वाला नहीं हूं, आपको अपनी नोटबुक लेके बैठना है, फिनोटाइपिक प्लास्टिसिटी की नोट आपको खुद बनाना है। आई एम नॉट गोइंग टू शेयर ए सिंगल वर्ड फॉर फिनोटाइपिक प्लास्टिसिटी। Prevalence of this phenomenon, that is phenotypic plasticity, is call for a theoretical quantitative understanding of evolutionary benefits. जो भी evolutionary benefits है उनके understanding के लिए it is important. We use a simple model to illustrate how such a benefits can be defined in terms of population growth rate and classify different contribution in limitation to these benefits. मैं बताता हूं, जब फार्मर फील्ड में कोई प्लांट शो करता है तो आपने देखा होगा कि अलग अलग टाइप के बर्ड्स, अलग अलग टाइप के अदर इंसेक्ट, अलग अलग टाइप के अदर ऑर्गेनिजम्स वो सीड्स निकालकर खाने की कोशिश करते हैं। क्या आपने देखा है? तो इसके लिए तो इसके लिए फार्मर क्या करता है? ही टेक्स प्रिकॉशनरी मेजर्स। कुछ साउंड वाले डिवाइसेस लगाता है, कुछ ऑप्टिकल डिवाइसेस लगाता है टू गेट रीड ऑफ सच अ टाइप ऑफ इंसेक्ट्स एंड अदर ऑर्गेनिजम्स। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? हेलो, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर। ठीक है, अभी स्क्रीन पर क्या दिख रहा है आपको? फिनोटाइपिक प्लास्टिसिटी। फिनोटाइपिक प्लास्टिसिटी। शुरू में मैंने बहुत कुछ एग्जांपल बताए, अभी हम फिनोटाइपिक प्लास्टिसिटी के बारे में डिटेल्स देख लेते हैं। बिकॉज आई हैव प्रिपेयर्ड अ ग्राउंड फॉर फिनोटाइपिक प्लास्टिसिटी। इट इज अ एबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म टू एक्सप्रेस डिफरेंट फिनोटाइपिक डिपेंडिंग ऑन द बायोटिक एंड अबायोटिक एनवायरनमेंट। हम हमेशा बायोटिक और एंड अबायोटिक एनवायरनमेंट पर डिपेंड रहते हैं, और ऐसे बायोटिक एंड अबायोटिक एनवायरनमेंट पर जब डिपेंडेंट है तो टू एक्सप्रेस द डिफरेंट फिनोटाइपिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर इज अवर फीचर। मैं आपको बताता हूं, आप अगर मॉर्निंग वॉक को धूपकाल में जाते हैं, समर में जाते हैं, तो क्या आप वुलन क्लॉथ्स पहन के, या आप जिसको क्या बोलते हैं स्पोर्ट्स के जो ड्रेस रहते हैं वुलन के, वो पहन के जाते हैं? नो सर। नो। अगर आप विंटर सीजन में घूमने जा रहे हैं तो क्या आप बरमूडा और हल्का सा टी शर्ट पहन के जाते हैं? हेलो, क्या? नो सर। नहीं जाते, क्योंकि यू आर शोइंग योर रिस्पॉन्सेस टू क्लाइमेटिक कंडीशंस। चलो, सर्दी ज्यादा है करके अगर 1 घंटा 2 घंटा आपको घूमना है तो क्या आप पानी साथ में ले जाते या नहीं जाते? हेलो, सर्दी के दिनों में आप घूमने जा रहे हैं, पानी की जरूरत नहीं है, फिर भी आप पानी की बोतल साथ में ले जाते या नहीं जाते? लेके जाते। क्यों? आपको पता है कि मोर एक्सर्शन होने वाला है, सर्दी है फिर भी मोर एक्सर्शन होने वाला है, एंड बॉडी रिक्वायर्स वाटर। So it is ability of organism to express different phenotypic dependings on biotic or abiotic environment. Biotic environment is known to you, that is of living things in surrounding, and abiotic, that is climatic factors. It involves the regulatory genes that switch on structural genes given
द अप्रोप्रिएट स्टिम्युलस, स्ट्रक्चरल जीन्स जो है जो अप्रोप्रिएट स्टिम्युलस देते हैं, ऐसे स्टिम्युलस पर इट इज डिपेंडिंग. Now many trees and shrubs produces the shade leaves and sun leaves. मैं आपको फिर से एग्जांपल बताता हूँ. ब्रॉड लिप में आपने देखा होगा, सबसे ब्रॉड लिप अपने सराउंडिंग में देखे तो टिक के है. इज इट राइट? हेलो, टिक प्लांट के लिप सबसे ब्रॉड लिप है. टिक प्लांट के लिप कौन से सीजन में शेड होते हैं? हेलो, शेडिंग ऑफ लीफ कौन से ऑटम. कौन से सीजन में? ऑटम. सर रेनी सीजन. रेनी सीजन में. आप कहां से बात कर रहे हैं अभी? कौन से एरिया से बात कर रहे हैं? हेलो. यस हाँ, आप कौन से एरिया से बात कर रहे हैं? सर. भंडारा. भंडारा. थोड़े आजू बाजू में जाके देखो, रेनी सीजन अभी शुरू है, क्या टिक्टोना को लीफ है या नहीं है? चलो अब कोई बताता है? स्वप्निल, सर से बोला बड़ा. समर सीजन. समर सीजन में, एग्जैक्टली राइट. समर सीजन में बहुत सारे पत्तियां झड़ जाते हैं, उसके साथ साथ सबसे ज्यादा लीफ झड़ते टिक के, बिकॉज वाटर रिक्वायरमेंट है जो वो ज्यादा है एंड सराउंडिंग में वाटर की कमी है, एंड दैट्स व्हाई ट्रांसपिरेशन से वाटर लॉस बचाने के लिए समर सीजन में ब्रॉड लीफ वाले जो पत्ते रहते हैं या प्लांट्स रहते हैं उनके लीफ झड़ जाते. क्या आपने देखा है विंटर सीजन में कुछ प्लांट्स के लीफ शेड हो जाते? क्या आपने Yes, sir. देखा है? ओके. Yes, क्यों झड़ जाते हैं? What is the reason? In case of some of the plants during the winter season, leaves are shed. Hello. हिवाळ्याच्या दिवसात झाडांची पानं का गळून पडतात? श्रुती बागडे, सुन रही? येस सर. हा, हिवाळ्याच्या दिवसात बऱ्याचशा झाडांची पानं का गळून पडतात? याचं कारण, हा बोला बोला बोला. विंडमुळे. हवा. नाही, विंडमुळे नाही. याचं कारण सर विंडचे पत्ते सर. पण तर पडतात ना थंडीमध्ये. हा, गळ. श्रुती क्लियर सांगा. हा, घाबरू नका, बोला बोला. अनिका बात कर रही है? अनिका. यस सर. हाँ. यस सर. Why in Sir, case in winter, हाँ, sir, in winter there might be not enough light or water for photosynthesis to take place properly. Therefore, it might shade. it may be one of the reason, but normally winter season में पत्ते झड़ जाते हैं. उसका एक अल्टीमेट रीजन ये है कि to get escape from severe cold. आ रहा है ध्यान में? So to get escape from severe cold, leaves are fall during severe cold season or severe winter season. Just a minute. Shade leaves are thinner and much greater in a surface area than sun leaves. How is the type of leaf determined? Type of leaf कैसा determine किया जाता है? The genus in which determine the shape of a particular leaf are sensitive to light. मैं फिर से आपको एक एग्जांपल बताता हूँ. आपने पाइनस के लीफ देखे हैं? क्या बोलते हैं पाइनस के लीफ को? एनीबॉडी? What we say to pinus leaf? हेलो. Needles. नीडल्स. क्या पाइनस में लीफ शेड होते हैं किसी भी सीजन में, इवन ड्यूरिंग सीवियर कोल्ड? No, sir. नहीं, क्योंकि these are needle shaped, they have different types of modifications, they have different abilities and characteristic features to cope with the surrounding climatic conditions. While in case of a teak, leaves are broad, they require more sunlight for capturing sunlight for photosynthesis, but during summer season requirement of water is less, and to avoid the loss of water from broad leaf, summer season में leaf shade होते हैं. So different individual has a different characteristic feature.
Specifically, the portion of the plant is responsive to the ratio of far red light to red light. Far red light से red light की तरफ जो responsive ratio है, that may be different in different individuals. Different individuals में different है. Red light is absorbed by leaf higher in the canopy, but far red light passes through to the ground. अलग अलग लेयर की एबिलिटी अलग अलग है, अलग अलग वेवलेंथ की लाइट अलग अलग लेयर्स एब्सॉर्ब करते हैं. Therefore, the ratio of far red light as to red light increases in more shaded areas. जहां more shaded area है वहां ratio of far red as to red light which is increased. When FR as to R ratio, FR means far red and R means red light ratio exceeds a critical value, जब exceed होता है, a leaf will be formed as a shade leaf which is much more efficient at gathering light under darker conditions. Darker condition में gathering light में high surface area में conditions may be different. Conditions different रहने के chances है. मैं आपको टॉकिंग ट्रीज, आपको दो लीफ दिखा रहा हूं. एक है शुगर मैपल और दूसरा है पॉपुलर. क्या इन दोनों लीव्स में अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक फीचर मॉर्फोलॉजिकल दिख रहे हैं या नहीं? Yes, sir. शुगर मैपल में लीफ अगर देखे गए तो लोब्ड लीफ है, लेकिन पॉपुलर में लीफ का मार्जिन डिफरेंट है, इट इज नॉट लोब्ड. मतलब जहां हवा का रुख ज्यादा है ऐसे जगह शुगर मैपल जैसे प्लांट रहेंगे, लेकिन जहां हवा का रुख बहुत ज्यादा ऐसी जगह पॉपुलर के लिए लेस चांसेस रहेंगे. Some vascular plants are known to produce herbivore deterrent compounds. Herbivore deterrent compounds मैं आपको फिर एक बता रहा हूं. नॉर्मली कंपाउंड को कौन से प्लांट लगाना आप प्रिफर करते हैं? सबसे ज्यादा कंपाउंड पर कौन सा प्लांट लगाते हैं? हेलो सुहाली, सुहाली सुन रही? हेलो सुहाली मालवंदे सुन रही क्या? सुहाली अवेलेबल है? यस सर. हाँ बताओ, कंपाउंड में हम कौन सा प्लांट लगाते? अगर वो फेंसिंग है सराउंडिंग टू फार्म या फार्म हाऊस को सराउंडिंग वाला फेंसिंग है किंवा शेतावरचे बांध असतील किंवा रस्त्यालगत कोणत्या प्रकारची झाडं लावणं आपण पसंत करतो, किंवा घराच्या फेंसिंग म्हणून जर तुम्ही वापर करणार असाल तर इवन गार्डन मध्ये जे फेंसिंग असतं त्याला कोणत्या प्रकारची झाडं लावणं आपण पसंत करतो? सुहाली, चलो सुहाली नहीं बता रही. गायत्री, गायत्री क्वेश्चन सुना मेरा? गायत्री आप क्लासरूम में है क्या? Yes, sir. हाँ तो बताओ ना. हाँ सर. यस बोलो, नहीं तो मालूम नहीं है तो नहीं बोलो. यस, कंपाउंड को या फेंसिंग को रोजेस लगाते वगैरह के. कौन से? हाँ पर फिर से बताओ, मुझे सुनाई नहीं दिया. सर जिनने काटे हो इस प्लांट. यस एग्जैक्टली, स्वप्निल ने बताया जिन प्लांट्स को काटे हो या जो रफ प्लांट हो, जिनकी वाटर की रिक्वायरमेंट कम हो, जो प्लांट्स जानवर खाना नहीं चाहते, ऐसे प्लांट्स आप फेंसिंग को लगाते हैं. इज इट राइट? सो सच अ टाइप ऑफ प्लांट्स यू ट्राई टू प्लांट टुवर्ड द फेंसिंग. फेंसिंग को आप ये प्लांट लगाना चाहते हैं. Some vascular plants are known to produce herbivore deterrent compounds. आणि उदाहरण म्हणून सांगायचं झालं तर बागड किंवा मेहंदी, मेहंदी लावतात कारण मेहंदी सहजासहजी खात नाहीत जनावर. आणि क्रॉप प्लांटच्या बाबतीत सांगायला गेला तर तुम्हाला माहिती असेल, प्लांट सांगतो इम्पॉर्टंट प्लांट सपोज फॉर टू बी करडई माहिती आहे तुम्हाला सगळ्यांना? यस सर. करडई, करडई Yes, बघितलेलं आहे तुम्ही? करडईला जे सीड्स आणि फ्रुट्स जे असतात त्या फ्रुट्सला काटेरी, करडईचं साधारणपणे झाड जर म्हणजे प्लांट जर बघितलं तर त्याला काटे असतात. आणि म्हणून बघा शेतकरी शेतामध्ये करडई लावणं पसंत करतो, बिकॉज बर्ड्स कुठल्याही प्रकारचा त्रास देत नाहीत, अदर डोमेस्टिक ॲनिमल्स कुठल्याही प्रकारचा त्रास देत नाहीत, आणि
गुड क्वालिटी ऑइल इज प्रोड्युस्ड आणि म्हणून शेतकरी शेतात अशा प्रकारचे प्लांट्स लावणं पसंत करतो. प्रोड्युसिंग these compounds only when need presumably saves the plant energy. Many of these allochemicals degrade quickly, making an inducible responses even more economical. Same example मी आता तुम्हाला सांगितलं, that is of करडई. Some researchers at Dartmouth tested some sugar maples and poplars to see if the production of allochemicals can be induced by herbivores. मैं और एक प्लांट आपको बताता हूँ, जस्ट मिनट मुझे याद करने दो. क्या आपने ग्लिरिसिडिया प्लांट का नाम सुना है? हेलो सर. ग्लिरिसिडिया साधारणपणे उन्हाळ्यात या प्लांटला फ्लावरिंग दिसतं. जस्ट अ मिनिट, मैं इमेज दिखाता हूं सो दैट इट इज इजी टू अंडरस्टैंड. ट्री असतं साधारणपणे मीडियम साइजचं. क्या आप लोगों ने ऐसे प्लांट्स देखे हैं? रोड साइड को लगाते हैं. अब इसी प्लांट के मैं आपको फ्लावर्स दिखाता हूं. हेलो, क्या आपको ग्लिरिसिडिया के फ्लावर्स दिख रहे हैं? Yes, sir. देखे हैं आपने ये? Yes, sir. समर सीजन में धूप काले में लगाते हैं. नॉर्मली आप जिसको सोशल फॉरेस्ट्री बोलते हैं, नॉर्मली सोशल फॉरेस्ट्री वाले जो प्लांट्स लगाते हैं उसमें ये प्लांट लगता है ग्लिरिसिडिया. इट बिलोंग्स टू कौन सी फैमिली? हेलो, क्या आप में से कोई ग्लिरिसिडिया की फैमिली बता सकता है फ्लावर देख के? स्वप्निल फुसे, Fabaceae, sir. सोमकुवर आहे. सोमकुवर Fabaceae. फैबेसी का है, पेपिलियोनेसी का है. चलो, Yes, sir. इसका कॉमन नेम है उंदीर कानी. मैं फिर से आपको एग्जांपल इसलिए बता रहा हूं कि इस प्लांट को के सीड्स जो है, दीज आर रोडेंटिसाइड्स. रोडेंटिसाइड्स मतलब रोडेंट्स को मारने के लिए दवाई करके यूज करते हैं. चूहा मारने के लिए यूज होता हाँ, और नॉर्मली आपने देखा होगा कि ये प्लांट जिस एरिया में है उसके 5-10 फीट के एरिया में ये दूसरे प्लांट को आने नहीं देता, ग्रो होने नहीं देता. इज इट क्लियर टू यू? सो some researchers at Dartmouth tested some sugar maple and poplars to see if the production of allochemicals can be induced by herbivore. मैं फिर से बोल रहा हूँ कि जहाँ ये ग्लिरिसिडिया है ऐसे एरिया में रोडेंट्स दिखते नहीं नॉर्मली, because they develop such a type of allochemicals which are dangerous to different types of herbivores. Is it clear to all of you? The experiment involved tearing of 7% of the leaf area of each tree. Level of allochemicals was measured before the artificial herbivory and 52 hours later. For both the sugar maples and poplar, an increase in the production of allochemical was seen after 52 hours. मतलब लीफ का कुछ एरिया डैमेज करके देखा तो एलोकेमिकल्स जो है वो बढ़ते हैं. मैं आपको फिर से बताता हूँ. क्या आपका अभी क्लास है दूसरा नेक्स्ट? हेलो, अभी आपका दूसरा क्लास है या नहीं है? मुझे 20 मिनट लेने की इच्छा है. अगर दूसरा क्लास है तो मैं यहीं पे खत्म करता, नहीं है तो मैं 20 मिनट और कंटिन्यू करना चाहता हूं. हेलो, हर्षदा, हर्षदा पाल आहे का? हर्षदा पाल, हर्षदा जनबंधू आणि दुसरी हर्षदा, तिसरी हर्षदा कोण आहे? तिसरी हर्षदा कोण आहे? मदने. मदने. कोणीतरी 3 हर्षदापैकी कोणी सांगितलं तर चालेल. घ्यायचं आहे की थांबायचं आहे? सर गोपाल मैम बोल रही थी कि लेंगे करके क्लास एक्स्ट्रा का. ठीक है, मैं बंद कर रहा हूँ.
हेलो। लेफ्ट होना है क्या? सब लेफ्ट हो गए ना? सर भी तो लेफ्ट हो गए। सर भी लेफ्ट हो गए क्या? टाइम भी हो गया है ना? और कोई नहीं ले रहा ना आज एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा। हो गया ना, लेफ्ट कर देते ना, सभी तो करती है लेफ्ट। हो जाओ फिर सब।